Hello everyone, welcome back to another interesting session of Ankita's tutorial and welcome to this IoT tutorial session. Now, IoT means that is the Internet of Things. Okay, now IoT is one of the greatest phenomena of the century. It's gaining a lot of popularity and in today's session, you will be getting a brief idea about what is IoT. So before starting this video, as usual, please subscribe my channel Ankita's tutorial, those who are new to my channel, and do not forget to comment, share and like my videos and forward my video as much as possible. This video is very much helpful for interview purpose and as well as for the college students also. So let's get started this video. So as you can see here, IoT, that is Internet of Things, we can connect IoT to various physical things like your manufacturing, transportation, healthcare, smart homes. Now this is water distribution, water management, environment purpose, energy engagement, wearable resources, home appliances, agriculture, car. I will explain it one by one. So see, before going through a detail, let me give you a little bit idea. Can you connect your smartwatch with your mobile? Yes, we can do that through Bluetooth, right? So can we keep track of our health record through smartwatch? Yes, we can do that. Weather update? Yes, we can also do that. Can we take a call through our smartwatch? Can we listen to music? Yes, we can do all those things. Okay, so now can we connect our mobile to the AC? That can be work as a remote to the AC. Yes, we can do that. Can we connect our mobile to the TV? That is our television. Yes, that also we can do that. So if we can do all these things, then yes, of course, we are a part of IoT, that is Internet of Things. Now, if I will give, it means इंटरनेट के साथ हम अपना मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर्स ये सारे कनेक्ट कर सकते हैं और उसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. वी कैन डू शॉपिंग, वी कैन डू ट्रांजेक्शन्स, वी कैन डू अवर पेमेंट्स, all the things we can do by the internet, and we can also connect internet through certain physical things, right? So if I will give you a definition, what is exactly IoT means, basically it's a platform where we can connect things which are embedded with either electronic software or sensors to the internet. So ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर हो और सेंसर के जरिए इंटरनेट के थ्रू कंबाइन कर सकते हैं, एंड दिस इन टर्न्स enables us to collect as well as exchange between these things, most importantly without human interventions. ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर अगर हम लोग ये सब चीजें इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके हमारा डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं, देन दिस इज व्हाट IoT कॉल्स. ओके, नाउ देन आई कैन से थिंग्स. अभी ये थिंग्स क्या है? थिंग्स है, नाउ दैट आई कैन से थिंग्स, इट कैन बी एनीथिंग and everything. It means you provide a platform through which all the things, starting from the smart home to the industrial tools, all these things are connected through the internet, so that the internet becomes the medium through which we are connecting all these components, right? See, let me give you example where I can connect these things. Suppose my house, जैसे कि मैंने वहां पे पहले अपने वीडियो जो देखा पिक्चर, my house, I can connect my lock. Okay, and then I can connect my AC, I can connect my light, and all this can be managed on the same platform, right? Now since I have a platform, so that I can also connect my car to this, yes, through which I can keep track of my fuel meter, I can keep track of my speed limit, I can also keep track of the location of the car as well. Now if there is a collective platform where all of these are connected, wouldn't be it great? Of course, this is something that can be definitely possible through IoT, isn't it? It means आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करोगे जिसके जरिए आप ये सारे काम कर सकते हो, जो कि इंटरनेट आपका एक प्लेटफॉर्म हो, ओके, जिसके थ्रू आप ये सब काम कर सकते हो. नाउ हिस्ट्री, इफ आई विल कम बैक टू द हिस्ट्री, इन 1982 Mellon, the researchers connect a vending machine to the internet to remote check for cold sodas. 1982 में पहले मेलोन करके एक
पर्सन जो कि सोडा को कोल्ड करने के लिए, वो चेक करने के लिए वेदर सोडा बिकम कोल्ड और नॉट, वो इंटरनेट को पहले यूज किया। उसके बाद 1990 में द फर्स्ट टोस्टर वाज ऑपरेटेड ओवर द नेट, नेट के थ्रू फर्स्ट टोस्टर ऑपरेट हुआ। नेक्स्ट 1999 में द टर्म आईओटी जो नेम दिया गया, ये दोनों बस इन्वेंट कर लिए, बस इंटरनेट के थ्रू टोस्टर को चला लिए और सोडा को कोल्ड करने के लिए देखे। उसके बाद उसको नाम दिया गया 1999 में, जो कि केविन एस्ट्रोन ने दिए। नेक्स्ट 2000 में एलजी इंट्रोड्यूस इज फर्स्ट स्मार्ट फ्रिज। ओके, नेक्स्ट 2004 में फर्स्ट स्मार्ट वॉच, जैसे कि मैंने आपको बोला स्मार्ट वॉच दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आईओटी। ओके, सो फर्स्ट स्मार्ट वॉच इंट्रोड्यूस्ड हुआ 2004 में। नेक्स्ट 2007 में आपका एप्पल स्मार्ट आईफोन आपका लॉन्च किया एंड वेयरेबल फिटबिट रिलीज, जो कि आप अपने रिस्ट में पहन सकते हो। नेक्स्ट 2009 में गूगल स्टार्ट टेस्टिंग सेल्फ ड्रिवन कार्स विदाउट ड्राइवर। गूगल ने आपका उसका सेल्फ ड्रिवन कार स्टार्ट किया। 2011 में आपका स्मार्ट टीवी आ गया, जो कि मैंने जैसे आपको बताया टीवी के थ्रू हम अपने मोबाइल को टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं, एज रिमोट मोबाइल को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 2013 में गूगल लेंस आपका रिलीज हुआ। 2014 में इको का जैसे सर्च इन स्मार्ट होम मार्केट, जो कि अमेजन के थ्रू रिलीज हुआ, ये जो कि वॉइस रिकॉग्नाइज, जो कि रियली स्क्रीन की जरूरत नहीं है आपको, कीपैड की जरूरत नहीं, जो कि वॉइस रिकॉग्निशन कर सकता है। 2015 में टेस्ला कम्स आउट विथ ऑटो पायलट ड्राइव फॉर देयर कार्स, 2015 में ये रिलीज हुआ। सो ये है आपका हिस्ट्री ऑफ आईओटी, जो कि इंटरनेट के जरिए ये धीरे धीरे चीजें सब आसान होते गए विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। आईओटी के क्या क्या फीचर्स है। अभी आईओटी के फीचर्स में क्या आता है, कनेक्ट, एनालाइज एंड इंटीग्रेट, ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स है, जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो पर्टिकुलर इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो। एनालाइज, कनेक्ट करने के बाद वो डेटा जाके क्लाउड में स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद उसको वो डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो, देन उसको इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, जो कि मेन फीचर्स ऑफ आईओटी। मैंने अब इतना डिटेल में ये नहीं दिया है, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज आईओटी के ये तीन मेन फीचर्स है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी। अभी ये जो आईओटी के क्या क्या कंपोनेंट्स है, 4 मोर मेन कंपोनेंट्स आर देयर। दैट इज फर्स्ट वन इज योर सेंसर्स, जो कि डेटा कलेक्ट करता है। द मेन टास्क ऑफ सेंसर इज टू कलेक्ट द डेटा। नेक्स्ट वन इज योर कनेक्टिविटी, आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा सेंडिंग द डेटा टू क्लाउड। नेक्स्ट वन इज योर डेटा प्रोसेसिंग, अभी सेंड करने के बाद डेटा, मेकिंग डेटा यूजफुल, which data should be used and which data should be extract. Next is your last one is your user interface, that is delivering information to the user. User means we are the end user. कौन सा डेटा यूजर के सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा, वही डेटा को डिलीवर किया जाएगा, that is the user interface. Now let's see how these things work. First is see types of sensors. बहुत सारे सेंसर है, यहाँ पे तो मैंने कुछ ही सेंसर का मेंशन किया है, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर हो, केमिकल एंड गैस सेंसर हो, जो कि टेम्परेचर आपका सेंस करता है, केमिकल एंड गैस सेंसर, इमेज लेवल सेंसर, प्रेशर, स्पीड, मोशन सेंसर, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इंफ्रारेड, जो कि हमारा जो इंफ्रारेड जो रेज आता है वो सेंसर का काम ये सब करते हैं, ह्यूमिडिटी सेंसर, वाटर क्वालिटी सेंसर, स्मोक सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर, ये बहुत सारे सेंसर्स है जो कि आईओटी के अंडर आपका आता है। तो अभी ये सब सेंसर को मैंने बारी बारी करके तो नहीं बोला है, इतना डिटेल मैंने नहीं दिया है, जस्ट आई एम गिविंग यू overall idea about IoT. But let's see how the sensor actually works. Now, a sensor is a device that measures physical input from its environment and converts it into data that can be interpreted by a computer. Means सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि कुछ फिजिकल इनपुट को मेजर करता है, वो कन्वर्ट करता है, वो फिजिकल इनपुट को डेटा में कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर इंटरप्रेट कर सकते हैं वो डेटा को। सेंसर का काम वही होता है, इट्स बेसिकली अ डिवाइस। दिस सेंसर यूजुअली इंटीग्रेटेड विथ माइक्रो प्रोसेसर सो दैट दे कैन कलेक्ट द डेटा। अभी जो डेटा कोई भी सेंसर कलेक्ट करे वो कैसे कलेक्ट करे, उसके थ्रू डेटा कलेक्शन करने के लिए कुछ होना चाहिए। सो दिस सेंसर यूजुअली कम विथ microprocessor so that they can collect the data and can
सेंड दिस डेटा थ्रू द इंटरनेट, देन वो डेटा कलेक्ट करके इंटरनेट को वो सेंड करते हैं. नेक्स्ट, द डेटा गैदर्ड बाय IoT सेंसर्स एंड सेंड टू द क्लाउड is analyzed by software that can make sense of the information and then send to user. ये जो डेटा गैदर होता है IoT सेंसर्स के द्वारा, ये सेंड किया जाता है क्लाउड को फॉर एनालिसिस पर्पस. ओके, बाय द सॉफ्टवेयर. सम सॉफ्टवेयर आर देयर जो कि ये डेटा को एनालिसिस करते हैं, जो कि एनालाइज करते हैं, एंड जो कि सेंस सम इंफॉर्मेशन जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन हो यूजर को सेंड करने के लिए, वो रेडी करते हैं. ओके, there are some most popular IoT sensors found in smart devices like wearables, smartphone and other monitoring tools used by individual organizations. बहुत सारे ऐसे पॉपुलर सेंसर है, जैसे कि मैंने कुछ सेंसर का एग्जांपल आपको दिया. जो सेंसर का जो काम है वो उसके हिसाब से वो डेटा कलेक्ट करता है, करने के बाद वो क्लाउड को सेंड करता है. वो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एनालाइज करते हैं वो डेटा, एनालाइज करके जो डेटा यूजफुल उनको लगता है वही डेटा वो यूजर के सामने रिप्रेजेंट करता है. दिस इज व्हाट सेंसर एक्चुअली डज. Moving to the next slide. Next one is your connectivity. Several communication protocols and technology are used in IoT to connect to internet cloud, depending upon range, cost, power usage, data rate, etc. The right one is used. Okay, मैंने आपको क्या कहा था कि एक सब जो होने के बाद सेवरल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है, बहुत सारे कनेक्टिविटी. सेंसर का काम क्या है? डेटा कलेक्ट करता है. कनेक्टिविटी क्या है? आप उस डेटा को अभी सेंड करोगे. आप मींस बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो कि IoT को कनेक्ट करता है टू इंटरनेट क्लाउड को. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका इसमें वो उस क्या रेंज होता है, कॉस्ट होता है. जैसे कि क्या अभी कैसे सेंड करते हैं, जैसे मोबाइल एक्सेस होता है जो इसमें GSM GPRS सर्विस होता है भाई, आपका वाईफाई के थ्रू, आपका ब्लूटूथ के थ्रू डेटा आपका सेंड होता है क्लाउड को. ये सब एक मीडियम है. जैसे कि हम लोग स्मार्टफोन को तो हम लोग अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं. कैसे? थ्रू ब्लूटूथ, isn't it? ब्लूटूथ के जरिए हम अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये एक मीडियम हुआ जो कि एक मीडियम के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, isn't it? Next, data processing. In the processing stage, a computer transforms the raw data information. मैंने क्या कहा था, कनेक्टिविटी में डेटा क्लाउड को सेंड होता है, उसके बाद क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा. प्रोसेसिंग होगा मतलब क्या? वे क्लाउड में जो सारे सॉफ्टवेयर होंगे वो एनालाइज करेंगे कौन से डेटा यूजफुल है फॉर द user. Now ये प्रोसेसिंग का काम है. In the processing stage, a computer transforms the raw data information. The transformation is carried out by using different data manipulations technique. Data यहाँ पे सब input, data means what? Some input. ये processing होके output means some useful information. Okay? जो कि स्टोरेज होता है क्लाउड में. क्लाउड में स्टोरेज होने, यहाँ पे डेटा आता है और डेटा जाता है. दिस इज अ टू एंड फ्रो. यू कैन से दिस इज अ साइकिल, जो कि डेटा आएगा, फिर प्रोसेसिंग होके फिर इंफॉर्मेशन होगा. ओके, यूजफुल इंफॉर्मेशन होगा. सो सी, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल्स कैसे काम करते हैं. डेटा प्रोसेसिंग साइकिल में, सो हाउ डज डेटा प्रोसेसिंग साइकिल वर्क्स? डेटा प्रोसेसिंग साइकिल follows a cycle which consists of 3 basic stages, that is input, processing and output. Input means what? Input is the first stage of the data processing cycle. It is a stage in which the collect data is converted into a machine readable form so that computer can process it. मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, ऐसे डेटा को इंटरप्रेट करेंगे जैसे कि कंप्यूटर उसको रीड कर पाएगा. सो ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज सिंस द डेटा प्रोसेसिंग आउटपुट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इनपुट डेटा. Okay, now processing. In the processing stage, a computer transforms the raw data into information. The transformation is carried out by using different data manipulation technique. यहाँ पे मैंने तीनों टेक्निक मेंशन किया. जैसे क्लासिफिकेशन में क्या होता है, डेटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप. सॉर्टिंग क्या होता है, अल्फाबेटिकली डेटा को अरेंज करना. कैलकुलेशन क्या है, सम अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस करना. उसके बाद भी डेटा आपका प्रोसेसिंग में क्या होता है, डेटा एग्रीगेशन होता है, डेटा एक्सट्रैक्शन होता है, डेटा क्लासिफिकेशन होता है, डेटा एनालिसिस होता है. एग्रीगेशन मीन्स डिफरेंट डिवाइसेस डेटा विल बी एग्रीगेटेड. ओके, डेटा एक्सट्रैक्शन मीन यूजफुल डेटा विल बी एक्सट्रैक्टेड एग्रीगेशन होने के बाद. क्लासिफिकेशन मीन्स कौन सा डेटा कौन सा कैटेगरी को है वो क्लासिफाई किया जाएगा. एनालिसिस मीन सो दैट वी कैन फाइंड अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ दैट डेटा फॉर अवर एक्सपेरिमेंट पर्पस. सो ये होता है आपका प्रोसेसिंग स्टेज में. अभी आउटपुट क्या,
जो इंफॉर्मेशन हम एंड यूजर को प्रोवाइड करेंगे. इन द लास्ट स्टेज आउटपुट इज रिसीव्ड. दिस इज द स्टेज वेयर द प्रोसेस्ड डेटा इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म and presented to the end user as useful information. Also, the output of data processing can be stored for future use. Means जैसे कि हमारे डेटा डीबीएमएस में आपने जैसे पढ़ा होगा, डेटा एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या, रिमूविंग द अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द डेटा एंड presenting the useful things to the user so that end user can easily interpret those data. So यही है आपका output. Next is your यूजर इंटरफेस. यूजर इंटरफेस जैसे कि मैंने बोला आपको एंड यूजर. द यूजर इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ द फीचर्स बाय व्हिच अ यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, यूजर अभी कैसे इंटरेक्ट करेंगे इस डेटा के साथ? थ्रू ए कंप्यूटर सिस्टम. दिस इंक्लूड्स स्क्रीन्स, पेजेस, बटन्स, आइकन्स, फॉर्म्स एटसेट्रा. ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आता है. उस फॉर्मेट के जरिए यूजर इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू. Okay, the most obvious example of user interfaces are software and applications on computer and smartphone. एक यूजर इंटरफेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको हमारा कंप्यूटर जो कि हम लोग यूज करते हैं, एंड स्मार्टफोन है जो कि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं थ्रू इंटरनेट, ये स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स के जरिए. ओके, नाउ यूजर इंटरफेस डजंट नेसेसरीली रिक्वायर स्क्रीन. यहाँ तो स्क्रीन हो गया, जैसे कि कंप्यूटर में हम लोग क्या स्क्रीन हमारा अपीयर होता है, स्मार्टफोन में भी हमारा स्क्रीन अपीयर होता है, पर यहाँ पे यूजर भी इंटरेक्ट कर सकता है without screen. Means, for example, if a TV remote has a user interface that consists of various buttons. जैसे कि रिमोट हो गया, ये यूजर इंटरफेस ही है, इसमें स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि बटन है. और सबसे बेस्ट एग्जांपल है विदाउट इंटरप्टिंग थ्रू स्क्रीन, दैट इज Amazon Echo can be controlled with voice commands. अभी तो आपका एलेक्सा भी है जो कि वॉइस को आपको रिकग्निशन करके उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है. नेक्स्ट इज योर, ये हो गया आपका डायग्राम. यूजर, फिजिकल वर्ल्ड, पर्सनल डिवाइसेस, इंटरनेट. सब पर्सनल डिवाइसेस आपका इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है, फिजिकल वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट होता है, जो कि यूजर इसको यूज करता है. नेक्स्ट इज योर प्रोस एंड कॉन्स ऑफ आईओटी. ओके, वहां जाने से पहले कुछ आपको ये भी बता दूं मैं, व्हाई डू यू नीड आईओटी. अभी आईओटी क्यों चाहिए हमें? जैसे कि मैंने बोला कि हमारे डे टू डे लाइफ में अभी आईओटी की रिक्वायरमेंट बहुत है, बिकॉज वट एवर मे बी वी आर यूजिंग दोज आर ऑल पार्ट्स ऑफ IoT, that is Internet of Things. Now IoT basically is expanding the interdependence of humans to interact, contribute and collaborate with things around us. अभी ये interdependence क्या है? See, we human, how we depend on each other. Like I am explaining this concept to you. If you are not clear, then you would reach back to me, you would request me for help. Okay, now this becomes an interdependence between us. When I am giving you a knowledge, and if you are not clear about certain things, then you will get back to me, and you are also helping similarly by giving me the comment in the comment section. Okay, so we all are interdependent on each other in certain way. For something or the other, if we can expand this interdependence to interact, collaborate and contribute with respect to different things around us, then we would build a proper IoT environment, isn't it? This would be much more safer, secure, effortless and time saving. ये जो इंटरडिपेंडेंस, इसी के लिए तो आईओटी चाहिए कि हम लोग कोई भी थिंग्स जो हम लोग इंटरडिपेंडेंट है ईच अदर थ्रू इंटरनेट. ओके, नाउ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ आईओटी. ये जो है कि हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है आईओटी की. मिनिमाइजेस द ह्यूमन वर्क्स एंड एफर्ट्स. ऑब्वियसली जो कि मशीन इन्वॉल्व हो रहा है, इट मीन्स यू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, सो ह्यूमन एफर्ट will automatically be less. Apart from this, it minimizes the human effort first. This is the first benefit. And efficiently utilize the resources that are available. ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ये भी पॉइंट है कि आप एफिशिएंटली रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हो जो कि अवेलेबल है. सी, इफ माई सिस्टम इज स्मार्ट एनफ टू इंटरेक्ट इट, देन आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन अदर थिंग्स. ओके, दिस इज सेम विथ everyone. So that is the major concern. Okay, because if my system is itself is able to do most of the work at the home, then I do not need to put in much effort. I can relax at home. And next benefit is it saves the time. जब
ह्यूमन से मशीन ज्यादा काम कर सकता है, तो ऑब्वियसली सेव्स द टाइम। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रीवियसली कंसर्न्स इंक्रीज होता है, और मशीन जब काम करता है ह्यूमन के, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज होता है। एंड दिस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, बिकॉज हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो सब कुछ इंटरनेट के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है। ओके। एंड लैक ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी बाय ह्यूमन लीडिंग टू हेल्थ इश्यू, और ये कम्प्लेक्स भी सिस्टम है फॉर मेंटेनेंस। Okay, so now these are the advantages and disadvantages. Now next concept is अभी applications क्या क्या है IoT के। सी जैसे कि पहले मैंने देखा था डायग्राम में, स्मार्ट इंडस्ट्री, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट ट्रैकिंग ऑफ एनिमल, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ, ये सारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। आपका जो भी स्मार्ट कॉन्सेप्ट आ गया ना, वो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। चलिए वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट हेल्थ केयर। स्मार्ट एग्रीकल्चर, वन वे टू फीड एवरीवन इज बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच कैन बी एनहांस्ड यूजिंग IoT। खाना खिलाने से ज्यादा तो अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। सो वन वे टू फीड एवरीवन इज बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच कैन बी एनहांस्ड यूजिंग IoT मीन्स दिस कैन, अभी ये कैसे हो सकता है? दिस कैन बी डन बाय फर्स्ट, आप कलेक्ट करोगे डेटा, कहाँ से? फार्म से कलेक्ट करोगे। जैसे कि क्या क्या कलेक्ट करोगे ऐसे डेटा एक फार्म से? सॉइल की क्वालिटी क्या है, सनलाइट कितना, उसका लेवल क्या है, कौन से टाइप का सीड है, रेनफॉल की डेंसिटी क्या है, और ये सब आप कलेक्ट करोगे जो फार्म से, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक farm sensors, satellites, local weather stations, etc. You will collect all these data related to farm. And then using this data with machine learning and IoT to create custom recommendations for each farm that will optimize the planting procedure, irrigation, levels required, fertilizer amount, etc. ये जो डेटा आप कलेक्ट करोगे, करने के बाद इसको आप क्या करोगे? डेटा को मशीन लर्निंग एंड IoT के द्वारा इसको आप कस्टमाइज करोगे। करने के बाद ये सब आप यूज कर सकते हो प्लांटिंग प्रोसीड्यूर में, इरिगेशन लेवल में, और फर्टिलाइजर अमाउंट, ये सब कैलकुलेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट, स्मार्ट हेल्थ केयर क्या है? There are many applications of IoT in the healthcare industry where doctors can monitor patients remotely through a wave of interconnected devices and machine without needing to be in direct contact with them. जैसे कि COVID-19 के टाइम हमारा क्या हो गया, हम लोग मोबाइल के थ्रू भी डॉक्टर के साथ हम लोग बात कर सकते थे, तो व्हाट्सएप हो, वीडियो कॉल हो, ऑडियो कॉल के थ्रू। Okay, this is very useful if the patients do not have any serious problems or if they have any infectious disease like COVID-19 these days. Without infected by the patient, doctor can directly connected with user via internet. One of the most common uses of IoT in healthcare is using robots. Nowadays, robots are also used in healthcare system. These include surgical robots that can help doctor in performing surgeries more efficiently with higher precision and control. ये रोबोट आजकल यूज हो रहे हैं IoT के फील्ड में। नेक्स्ट, होम स्मार्ट होम, दैट इज क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, स्मार्ट होम के थ्रू आपका लॉक कनेक्ट हो सकता है, टीवी, स्पीकर, सिक्योरिटी कैमरास, ब्लाइंड्स, थर्मोस्टाट, लाइट, एप्लियंसेस, इरिगेशन। आजकल तो सारे होम में हमारे क्या वाईफाई हो गया है, वाईफाई हम लोग कनेक्ट हो सकते हो। दिस इज व्हाट स्मार्ट होम लुक्स लाइक। मीन्स आपका क्या है? Connected home. Smart home devices are mainly focused on improving the efficiency and safety of the house as well as improving home network. आप अगर कैमरा लगवा रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप देख सकते हो कौन, विदाउट इवन योर प्रेजेंस इन होम, आप कैमरा को अगर आप मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, आप एनीवेयर, no matter wherever you are, you can operate your you can visualize everything from your home through your camera. Okay, devices like smart outlets monitor electric usage and smart thermostats provide better temperature control. Hydroponic system can use IoT sensors to manage the garden while IoT. ये गार्डन के लिए है। स्मोक डिटेक्टर्स होता है जो कि डिटेक्ट करते हैं टोबैको स्मोक। होम सिक्योरिटी सिस्टम लाइक डोर लॉक, सिक्योरिटी कैमरा, ये सब आता है। एंड वाटर लीक डिटेक्टर्स कैन डिटेक्ट एंड प्रिवेंट थ्रेट्स एंड सेंड अलर्ट टू होम ओनर्स। ये सब हो गया हमारा स्मार्ट होम का। और एक क्या है? ऑटोमेटिकली टर्निंग अ डिवाइसेस नॉट बीइंग यूज्ड, rental property management and maintenance, finding misplaced item like keys or wallet, automatically daily task like vacuuming, making coffee, etc. तो ये सारे अभी स्मार्ट होम का ये एक फैसिलिटी है जो स्मार्ट होम के अंडर आता है, जो कि हमें IoT द्वारा मिलता है। नेक्स्ट इज योर
एजुकेशन विथ आईओटी, एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि हमारा अभी कोविड के टाइम स्मार्ट लर्निंग, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, अभी तो जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम हो गया है, तो इंटरनेट के थ्रू बच्चों को यूजफुल इन रियल टाइम डेटा हम लोग कलेक्ट करके उनको प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन विथ आईओटी। और एफिशिएंट एंड सुपर फन के जरिए इम्प्रूव स्कूल, इसमें क्या क्या आएगा आपका, इम्प्रूव स्कूल मैनेजमेंट एफिशिएंसी, रिसोर्स मैनेजमेंट, ग्लोबल ग्लोबल इंटरेक्शन, अभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम का जो फैसिलिटी दिया जा रहा है, ये सारे आपका आईओटी के अंडर आता है। नेक्स्ट इज योर आईओटी एंड स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी, जैसे कि इंडिया में आजकल 100 cities आर कमिंग अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी, इंडिया गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड। इसके अंदर क्या क्या आता है जो एक सिटी को स्मार्ट बनाता है? सी, connected car can communicate with parking meters and electric vehicle charging docks and direct drivers to the nearest available spot, जो कि आपका ये कार कनेक्ट का हो गया। स्मार्ट गार्बेज, जो कि ऑटोमेटिकली सेंड करता है डेटा किसको, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को, एंड शेड्यूल करता है पिकअप एज नीडेड और प्री प्लान शेड्यूल। ये पिकअप करेगा और शेड्यूल करेगा कहां से कैसे वेस्ट कलेक्ट करना है। Secure wireless connectivity and IoT technology are transforming traditional element of city life like street light into next generation intelligent lighting platform with expanded capabilities. ये हो गया आपका। नेक्स्ट, हाई पावर एम्बेडेड एलईडी अलर्ट कंप्यूटर्स अबाउट ट्रैफिक इश्यूज हो गया, सीवियर वेदर वार्निंग्स हो गया, ये सब आपका कहां पर फायर अलार्म हो गया, ये सब आपके आईओटी के स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। एंड नाउ द एडवांटेज ऑफ nowadays, this is very trending, the advantage of 5G technology is expected to be a watershed event that propel smart city technology into the mainstream and accelerates new deployment. और let me give you another example. एम्स्टरडम, जो कि कैपिटल है नीदरलैंड का, वहां पे कुछ 170 प्रोजेक्ट्स जो है आपके आईओटी के अंडर चलते हैं, आईओटी कॉन्सेप्ट वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सिटी लाइक न्यूयॉर्क, वहां पे भी आईओटी कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंडिया में भी अभी कुछ 100 सिटी हमारा आ गया है जो कि स्मार्ट सिटी के अंदर आए। सो ये सब है आपका आईओटी के एप्लीकेशंस। ये तो मैंने कुछ कुछ आपको दिया, जैसे कि एजुकेशन में हो, स्मार्ट सिटी में हो, स्मार्ट होम का कंसेप्ट हो, ऐसे ही आपका बहुत आता है एवरी वे, जैसे कि आपका आपका जो सॉइल मैनेजमेंट हो, और आपके पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हो, आपका इंडस्ट्रियल टूल्स के लिए हो, वहां पे सारे भी आईओटी को इम्प्लीमेंट करके बहुत ही स्मार्ट तरीके से टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट IoT. I hope you will like my video, and if you are really liking my video, then please subscribe my channel. Once again, I'm requesting you. And if you have any doubt about any slide, or if you are not clear about anything, and if you are interested to know about anything, then let me know in the comment section, so that in my next video I will present that topic. Okay, thank you.